Reverend Father Principal S. Arokya Alex, teaching and non-teaching staff, and my dear friends. Today, we unite to honor the timeless teachings of Lord Mahavir, whose principles of non-violence, truth, and compassion continue to inspire countless lives. Let us begin this momentous occasion by immersing ourselves in his words of enlightenment and wisdom. Now, I would like to invite Vanshika Rana of class 9-2 to deliver an insightful speech on the essence of Mahavir. A very good morning to Reverend Father Principal S. Arokya Alex, esteemed teachers, and my dear friends. Today, we gather here to celebrate Mahavir Jayanti, the auspicious birth anniversary of Lord Mahavir, the 24th Tirthankar of Jainism. This day is not just a celebration, but a reminder of his timeless teachings and principles that guide us towards a life of peace, compassion, and righteousness. Lord Mahavir was born as Vardhaman over 2,500 years ago in the kingdom of Vaishali. Despite being born into a royal family, he renounced all worldly pleasures in search of the ultimate truth. He dedicated his entire life in spreading the important message of 5 principles that he lived by: ahimsa, non-violence, asteya, non-stealing, truth, satya, brahmacharya, celibacy, and non-possessiveness, that is aparigraha. जब हम उनकी जीवन की गहराइयों में झांककर देखते हैं तो हमें कुछ ऐसे अमूल्य उपदेश मिलते हैं जो आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। जियो और जीने दो, live and let live. This was his fundamental principle. Every living being, no matter how small, has a right to live. Imagine how peaceful the world would be if we all followed this simple yet powerful thought. Lord Mahavir once said, खुशी बाहर नहीं हमारे भीतर है, meaning that true happiness comes from within. If we cultivate peace and contentment inside, we can spread positivity and harmony in the world around us. On the special occasion of Mahavir Jayanti, let us not celebrate his birth, but also commit ourselves to live by his teachings, striving for a life of truth, compassion, and non-violence. So, as we celebrate Mahavir Jayanti today, let's not just remember his name, but follow his path. Let's be kind, let's be honest, and let's respect all living beings. Thank you, and Jai Jinendra. To carry that spirit forward, we now bring a thought-provoking skit that will take us deeper into the teachings of Lord Mahavir. So sit back and enjoy as our performers bring his story to life on stage. जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। हिंसा, पशु बलि, जाति पाति के भेदभाव जिस युग में बढ़ गए, उसी युग में पैदा हुए थे महावीर स्वामी। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशाला के यहाँ एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ था। इस बालक का नाम वर्धमान रखा गया। सीन 2। वर्धमान बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे। 8 साल की उम्र में जब वर्धमान को गुरुकुल भेजा गया, तब शिक्षक ने उन्हें कुछ शब्द याद करने को दिए। वर्धमान चुपचाप सुनते रहे। कुछ देर वर्धमान को खाली बैठे देखकर शिक्षक ने उन्हें बुलाया और कहा कि वे अपना समय बर्बाद करने के बजाय शब्द याद कर लें। उत्तर में वर्धमान ने सभी शब्द पढ़ दिए। शिक्षक बहुत हैरान हुए। जब शिक्षक छोटे लड़के की आश्चर्यजनक क्षमता को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी गुरुकुल में एक बूढ़े ब्राह्मण ने प्रवेश किया। शिक्षक ने उनका अभिवादन किया। ब्राह्मण ने शिक्षक से व्याकरण पर कुछ जटिल प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर शिक्षक नहीं दे सके। ब्राह्मण मुस्कुराए और कहा,
आचार्य, कृपया अपने आप को परेशान मत करिए। हो सकता है आपका यह नया छात्र मेरी समस्या का समाधान कर सके। आपकी अनुमति से क्या मैं इस बालक से प्रश्न पूछ सकता हूँ? वृद्ध ब्राह्मण ने वर्धमान के सामने जटिल प्रश्न रखे। नन्हे वर्धमान ने बिना झिझक सही उत्तर दिया। शिक्षक चकित थे और अपमानित महसूस कर रहे थे। ब्राह्मण मुस्कुराए और शिक्षक को अपमानित महसूस ना करने के लिए कहा। उन्होंने वर्धमान को भविष्य का तीर्थंकर बताया और कहा कि तीर्थंकर जन्म से ही अवधि ज्ञान रखते हैं। शिक्षक वर्धमान को उनके पिता के पास वापस ले गए और राजा सिद्धार्थ को पूरी घटना बताते हुए बोले, वर्धमान शिक्षित पैदा हुए हैं और उन्हें गुरुकुल की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अट्ठाईस वर्ष की उम्र में वर्धमान के माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनके मन में वैराग्य लेने की इच्छा जागृत हुई, परंतु ज्येष्ठ बंधु नंदीवर्धन के अनुरोध पर वे 2 वर्ष घर पर रहे। बाद में 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने श्रामणी दीक्षा ली। वे समण बन गए। यही वर्धमान आगे चलकर महावीर स्वामी कहलाए। एक दिन संध्या के समय महावीर स्वामी एक वृक्ष के नीचे निश्चल बैठकर ध्यान करने लगे। तभी एक ग्वाला अपने कुछ जानवरों को लेकर वहां आया और उन्हें संबोधित करके बोला, हे मुनि, मैं गांव में दूध बेचने जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक मेरे जानवरों का ध्यान रखना। इतना कहकर उनका जवाब सुने बिना वह वहां से चला गया। कुछ समय बाद वह लौटा तो देखा कि महावीर स्वामी ज्यों के त्यों बैठे हैं, लेकिन जानवर वहां नहीं है। उसने पूछा, मुनि, मेरा पशुधन कहाँ है? महावीर स्वामी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो ग्वाला इधर उधर देखते हुए जंगल में घुस गया और पूरी रात वहां अपने जानवर तलाशता रहा। इसी बीच जानवर चलकर लौट आए और महावीर स्वामी को घेर कर बैठ गए। सुबह थका मंडा ग्वाला लौटा तो जानवरों को वहां देखकर आग बबूला हो उठा और गुस्से में बोला, इस मुनि ने मुझे तंग करने के लिए मेरे जानवरों को छिपा दिया था। अभी इनकी खबर लेता हूँ। यह कहकर उसने जानवरों को बांधने वाली रस्सी अपनी कमर से खोली और महावीर पर वार करने को हुआ। तभी एक दिव्य पुरुष ने वहां प्रकट होकर उसे रोक दिया और कहा, ठहरो मूर्ख, यह क्या अपराध करने जा रहे हो? तुम बिना इनका उत्तर सुने अपने जानवरों को इनकी रखवाली में छोड़कर गए। अब उन्हें पाकर भी इन्हें दोष दे रहे हो? मूर्ख, ये भावी तीर्थंकर है। यह सुनकर ग्वाला महावीर जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करके वहां से चला गया। अंत में मैं आप सभी को महावीर जी के कुछ अनमोल उपदेश बताना चाहूंगी, जो सत्य को जानने में हमारी मदद करता है, जो हमारे मन को नियंत्रित रखता है, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, वह ज्ञान है। जिस तरह हमें खुद के लिए दुख पसंद नहीं है, उसी प्रकार दूसरों को भी नहीं है। हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। महावीर जी का हमेशा यही कहना था, अहिंसा परमो धर्म, जिसका अर्थ है कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है।
अतः अगर हम सब महावीर जी के पदों पर चलने की कोशिश करते रहेंगे तो हमारा जीवन और भी बेहतर होता जाएगा। धन्यवाद। So now let's immerse ourselves in a graceful performance by our talented dancers. जाने अनजाने में पाप तो हुए हैं हमसे, ये मानना पड़ेगा, वरना मंदिरों के द्वार इस तरह बंद ना होते, बंद ना होते, बंद ना होते। ओ मेरे प्रभु तेरा जिन शासन सौभाग्य से हमने पाया है, तेरा हर एक सिद्धांत प्रभु हमें आज समझ में आया है। हालात बड़े ही मुश्किल हैं पर हिम्मत मैं ना हारूंगा। महावीर की संतान हूँ मैं, फिर बन के शेर दहाड़ूंगा। तूने मुश्किल हालातों में भी मन में अपने धीर रखा, इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्धमान महावीर बना। महावीर तेरी संतानों की मैंने लाख दुआएं पाई थी, जब मौत सामने थी मेरे मैंने मौत को आंख दिखाई थी। तूने कितने उपसर्ग सहे, तुझे कितनी आँचें आई थी, जब चंडकोश ने डंक किया तूने दूध की नदी बहाई थी। हाँ मैंने अब ठाना है वो युग वापस लाना है, अंधे का अब वीर जगाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है, महावीर सा मुझको बन जाना है। It is my honor to extend a sincere and heartfelt vote of thanks to all those who contributed to making this occasion truly meaningful. First and foremost, I would like to thank our Reverend Father Principal S. Arokia Alex for his unwavering support and encouragement. Your presence added grace to the celebration and your consistent commitment to fostering cultural and spiritual awareness among students is deeply appreciated. To our teachers, thank you for your dedication, creativity and efforts in ensuring that today's program reflected the profound teachings of Lord Mahavir with sincerity and grace. To our participants, thank you for your enthusiastic performances. Your soulful dance, heart-touching skit and expressive speeches brought depth and beauty to the celebration. A special thanks to the Cultural and Kids Club for their vision and the smooth coordination of today's event. And to our entire audience, thank you for your presence which added warmth and spirit to the celebration. As we step away from this gathering, may we carry with us the eternal values of ahimsa and karuna that Lord Mahavir exemplified. Thank you and wishing you all a peaceful and purposeful Mahavir Jayanti.